Hello everyone, welcome to today's video. I'm Dr. Rishabh Jain. I'm currently doing senior residency in the Department of Radiology at AIIMS New Delhi. And in today's video, I'd like to tell you what are the good sources for revision for third and fourth prof subjects as far as INI-CET or NEET PG is concerned. So I got rank 4 in AIIMS PG in July 2018 and rank 11 in PGI Chandigarh. And what I figured out was that the whole crux of Indian PG examinations is a skewed distribution of 60-40 in terms of first, second year and third and fourth year. So your 60% of the questions, especially in INI-CET, this is true. It comes from first and second prof, and only 40% comes from third and fourth prof. This is also true for NEET PG. I would say for 55 to 45% this distribution varies. But the fact remains that first and second prof subjects are more high yielding. The amount of effort you put in studying these subjects during your revision or your preparation for NEET PG will have a direct correlation with the number of questions that get correct versus the amount of effort that you put in for third and fourth prof. Since the syllabus for third and fourth prof is vast and medicine is vast in general, and so जितना आप एफर्ट उसमें डालते हो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस तब भी ठीक हो जाए. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 120 क्वेश्चंस INI के लिए फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉप अच्छे से पढ़ते हो, सो यू हैव अ प्रोबेबिलिटी यू विल गेट 80 to 100 क्वेश्चंस करेक्ट. बट इफ़ यू लाइक पुट वेरी हार्ड एफर्ट एंड स्टडिंग थर्ड एंड फोर्थ प्रॉप सब्जेक्ट्स, out of 80 questions you'll still be able to get only 40 to 50 questions correct. So what my strategy was during that time is to focus on first and second prof subjects more. And the whole, at the end, it boils down to revising these 19 subjects in the last 10 days, and we have discussed this. So how to prepare for third and fourth prof subjects now? So there's a concept of a base notes plus add-on notes. So base notes are one जिससे आपकी knowledge, understanding बनती है, and these base notes can be your MBBS notes. अब your MBBS notes can be one जो कि आपने खुद बनाए हैं. For example, during my MBBS I read stroke and stroke imaging very well, so मैंने वो खुद ही नोट्स बना लिए थे अपने. So they become my base notes. अगर आपने कोई कोचिंग अटेंड की है, भाटिया डैम्स, मैरो प्रेप, एनी फैंटास्टिक PG प्रेप कोचिंग, वेल दोज आर योर बेस नोट्स. अगर कोई नोट्स नहीं बनाए, फ्रेंड से फोटोकॉपी कर लो. फ्रेंड ने कोचिंग लगाई होगी, उसके नोट्स फोटोकॉपी कर लो. अगर वो भी नहीं कर सकते तो जैन स्टेशनरी जिंदाबाद. अगर वो भी नहीं करना तो रेडीमेड नोट्स ले लो जो सारी कोचिंग प्रोवाइड करती है. बट ये बेस नोट्स बन गए, इनको यू रीड एंड इनके ऊपर देन यू मेक एड ऑन. सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फर्स्ट जॉइन अ TND. I'd highly recommend you guys to join a TND because it makes a schedule for you, and वो फिर schedule follow करना it's easier because then there are tests coming up and you automatically read. So in base notes को, for example you have a TND coming up, read those base notes, and in base notes के ऊपर you add ons from your TND. अब add on subject wise क्या क्या है? So number 1, the golden rule of PG preparation in India is medicine and surgery are useless subjects as far as PG entrances in India is concerned. जितना टाइम एंड एफर्ट मेडिसिन सर्जरी पढ़ने में लगता है उतने में आप 5-6 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो. सो उसका एड ऑन प्लस उसका बेस छोटे से छोटा बनाना है. सो व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय टाइम कि मेडिसिन आई रिलाइड कम्प्लीटली ऑन डॉक्टर थमीम सर्स क्लास. ही टीचेस प्रिटी गुड एंड 7 to 8 days, maximum 10 days he completes the entire medicine covering all the high topics. एंड मैंने डिसाइड किया था इससे ज़्यादा मेडिसिन को टाइम नहीं दूंगा. सर्जरी के लिए आई रिलाइड आई वॉज गुड इन सर्जरी ड्यूरिंग MBBS, सो एक वो एडवांटेज था. प्लस उसके साथ साथ आई एडेड TND के नोट्स, विच एवर TND यू लाइक, विच एवर कोचिंग यू लाइक. एवरी कोचिंग एज फार एज सर्जरी इज कंसर्न इज गुड. प्लस आई वुड रिकमेंड यू कि जो जनरल सर्जरी लव एंड बेली के इनिशियल चैप्टर्स हैं दे आर वेरी गुड बिकॉज वो ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं. सो उसका भी एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटकम. एंड वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक. एक छोटी सी हैंडबुक होती है वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी, एंड उसमें से गाइडलाइंस दे रखी हैं. सो दे हैव वेरी गुड गाइडलाइंस ऑफ लेट्स से कोलिसिस्टेक्टमी, थायराइड, FTNs की बहुत अच्छी गाइडलाइंस है. सो आई यूज टू रेफर दैट. सो मेडिसिन सर्जरी 10 days मेरे हिसाब से डन. पीड्स के लिए आई थिंक अगेन TND वुड सफाइस एज एड ऑन्स प्लस घई के इनिशियल चैप्टर्स जो जनरल पीड्स बताते हैं. गायनी के लिए अगेन TND सफाइस. आई थिंक
गायनी के लिए TND शुड बी योर बेस नोट्स ओनली, उसके अलावा गायनी नहीं पढ़नी है. डॉक्टर दीप्ति टीचर्स गायनी वेरी वेल. PSM के लिए आई थिंक बायोस्टैट्स फर्स्ट एड में बहुत अच्छी दे रखी है, क्रिस्प, शॉर्ट एंड ईजी फॉर यू टू रिवाइज. TND के साथ एक्सप्लेनेशंस एंड समझ लो, प्लस अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, रेस्ट आई थिंक विवेक जैन विल कवर एवरीथिंग फॉर यू. PSM is something you can give time to, in my opinion. Biostats is very high yielding and it's given very well crisp in first aid. हाँ, डर्मा के लिए आई थिंक TND सफाइस. ऑर्थो के लिए एज एड ऑन, ऑर्थो के लिए TND प्लस आई अटेंडेड ऑर्थो धूम धड़ाका, जो कि डॉक्टर पूर मेहरा लेते थे उस टाइम पर. आई डोंट नो इफ ही स्टिल टेकिंग इट, बट दैट वॉज अगेन वेरी क्रिस्प 2 to 3 days class in which he covered entire ortho and that was my base कि इसके ज़्यादा मैं पढ़ूंगा ही नहीं. सो साइकी फर्स्ट एड में बहुत चीज़ें रखी है, क्रिस्प अराउंड 40 पेज साइकैट्री के हैं, ही कवर्स एंटायर साइकैट्री, एंड उसी में देन आई एडेड TND के नोट्स एंड दैट वाज माय बेस प्लस एड ऑन. एनेस्थीसिया के लिए आई थिंक TND वुड सफाइस. इसके अलावा जो आपके ये वाले बेस नोट्स हैं, जैन स्टेशनरी फोटोकॉपी, आपके अपने नोट्स, कोचिंग के नोट्स, उसके ऊपर ही TND ऐड कर लो. ऑफ द NT इन माय ओपिनियन आर यूजलेस सब्जेक्ट्स फॉर PG एंट्रेंस, बिकॉज ऑफ था में कुछ भी पूछ रहे होते हैं एंड योर एफर्ट इज डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू आउटकम. सिमिलरली ENT के लिए आई थिंक बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है यू कैन स्किप इट. अगर आपके पास टाइम है, यू वांट टू रीड इट, सो अटेंड अ कोचिंग जिसमें ENT 2-3 दिन में पूरी ENT खत्म हो जाएगी एंड दैट यू मेक एज यू बेस प्लस एड TND इन दैट. फॉरेंसिक के लिए बेस आपके ये सारा जो ऊपर दे रखा है, MBBS नोट्स या कोई फोटोकॉपी या जैन स्टेशनरी या कोचिंग नोट्स, प्लस अपने TND ऐड कर दो. एंड द होल इज सो इन टू रिवाइज द थर्ड प्रॉफ के लिए बेस नोट्स के ऊपर यू ऐड ऑन रिव्यू बुक्स प्लस माइनस, GT प्लस माइनस, TND फॉर श्योर. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि व्हाट आई डिड वाज कि हर एक सब्जेक्ट की एक TND का एक अलग अलग रजिस्टर बना लिया. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर्जरी का TND चल रहा है, तो सर्जरी का 2 weeks चल रहा है TND. सो मैंने सर्जरी का अलग रजिस्टर बना लिया, उसी में फिर देन आई एडेड स्टफ फ्रॉम बेलीज, देन आई एडेड स्टफ फ्रॉम वॉशू, या फिर ब्रेस्ट इमेजिंग या ब्रेस्ट पैथोलॉजी. ब्रेस्ट बहुत पूछते हैं, ट्रॉमा बहुत पूछते हैं सर्जरी में, सो उसी में ऐड कर लिया. सो एक इतनी पतली किताब बन गई जिसको आई कैन रिवाइज इट इन 1 day बिफोर एग्जाम. एंड द end point, the bottom line, and this I emphasize again and again, is to revise this whole first, second, third and fourth prof in 10 days. So if you can ensure that, and if you prepare your PG preparation in such a way that you can revise your everything in 10 days, your 19 subjects in 10 days, your PG selection is guaranteed. I can assure you that. So good luck and feel free to comment in case you have any query. Thank you.